FIMM integration is, like concept we'll see. Okay, when any inventory or any transaction, okay, अगर कोई भी transaction होता है, like if we consider goods receipt या फिर goods issue, what exactly the goods receipt is? Goods receipt is nothing but NIGO. ठीक है, एसपी में NIGO किया जाता है. ठीक है, with respect to which document? Purchase order. Purchase order document, yes. Okay, goods receipt is nothing but we are doing inverting that material into our company premises is nothing but goods receipt we are doing. उसे GRM भी कहा जाता है. ओके, और दूसरा जो ट्रांजैक्शन है दैट इज गुड्स इश्यू, GI. ठीक है, गुड्स इश्यू क्या होता है? आफ्टर गुड्स रिसीव ना वी हैव टू कंज्यूम दैट मटेरियल, राइट? तो अलग अलग डिपार्टमेंट वो जो मटेरियल जो हमने प्रोक्योर किया है वो कंज्यूम करेंगे. वो कंज्यूम करने के लिए उन्हें गुड्स इश्यू करना होता है. ओके, तो ये अलग ट्रांजैक्शन है आफ्टर गुड्स रिसीव. ओके, सो ये गुड्स रिसीव, ये गुड्स इश्यू जो है दीज आर दी ट्रांजैक्शंस, इन्वेंटरी ट्रांजैक्शंस. तो ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं तब क्या होता है? स्टॉक वैल्यूएशन होता है. ये टर्म मैंने पहले भी यूज किया था, देखो, स्टॉक वैल्यूएशन. व्हाट एग्जैक्टली द स्टॉक वैल्यूएशन इज? So they will check if everything has been on record. ओके, So if the material that was procured and the records that have been maintained were balancing or not. okay. Okay, that is also correct. But one more thing I will add here. Stock valuation is nothing but what we can say, consider this goods receipt. Whenever goods receipt is happening, we are procuring that material in short, inverting that material with respect to the purchase order document, right? तो स्टॉक वैल्यूएशन में स्टॉक बढ़ेगा गुड्स रिसीप्ट के टाइम पे, करेक्ट? स्टॉक विल इंक्रीज Yes, इन yes. केस ऑफ गुड्स रिसीप्ट. इन गुड्स इश्यू के टाइम पे स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा? Oh, like it will be distributed Distributed in the sense to it will different consume, right? departments. In this case, at the time of Consumed, goods yeah. issue, the material will Yes, get consumed. It means the stock will reduce. So that time also stock valuation yes. happens. Stock valuation एक simple term ले लो. Stock will either it will get increase or decrease. That's it. Nothing but stock Okay, valuation. okay. Okay. So as I said, whenever any transaction will happen, if it is a goods receipt or goods issue, then one material document and one accounting document will get generated. So that material document, like if you posted goods receipt or goods issue, this kind of message we get, right, on left side, down left side, like this document Yes, yes. has been created, kind of. Okay. So one material document is created. Okay, Okay. Again, I will show you that again one okay. accounting document is also gets generated in background. Okay. So where it's get generated, what are that Okay. accounting document? So that we need to study actually. तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, एक मटेरियल डॉक्यूमेंट और एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है. तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो जनरेट होगा दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंस साइड. इट्स कंप्लीटली अकाउंटिंग रिलेटेड, राइट? सो इट्स फ्रॉम फाइनेंस साइड. एंड Yes. मटेरियल डॉक्यूमेंट जो जनरेट होगा दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम एमएम साइड, क्योंकि पूरा कंप्लीटली Oh, एमएम sir. का ही Yes. उसमें डेटा इनपुट किया जाता है. तो इसीलिए जो ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं, इट्स लाइक अ ब्रिज, राइट? सो दैट इज द व्हाई वी कॉल इट एज अ एफआई एंड एमएम इंटीग्रेशन. FA1. ओके, Okay. या फिर उसे आप ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन भी कह सकते हो. यहाँ पे उसका फुल फॉर्म दिया मैंने, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन. ओके, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन क्यों बोला Yes. गया है? जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, मतलब बैकएंड से वो डेटा ऑटोमेटिक आता है, हमें वो मैन्युअली मेंटेन नहीं करना पड़ता है. एक ही बार हमें ओबीवाई से सेटिंग करके एक जो है वो टी कोड है, ठीक है, उसमें ये सब अकाउंटिंग डेटा फिलअप करना पड़ता है. तो वो कंप्लीटली जो है फीको जो पर्सन है फाइनेंस का वही देखते हैं. बट स्टिल वी नीड टू स्टडी व्हाट एक्जैक्टली दिस इज ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन. ऑटोमेटिकली Okay. अकाउंट कैसे डिटरमाइन होता है. ओके, सो दिस इज द एक्चुअल कांसेप्ट. एनी डाउट इन दिस? No, no. So far good. ओके, देन व्हाट विल बी द एग्जैक्ट इंपैक्ट आफ्टर जीआरएम? तो जीआरएम क्या है? गुड्स रिसीप्ट, जैसे मैंने कहा. ओके, दैट गुड्स इश्यू. तो पहले ना पहला केस हम गुड्स रिसीप्ट का देखेंगे. देन व्हेन वी विल चेक विद द इन्वेंटरी पार्ट, देन आई विल शो यू दिस गुड्स इश्यू, हाउ वी नीड टू डू द गुड्स इश्यू एंड हाउ द ट्रांजैक्शंस हैज बीन डन. क्लियर? सो Okay. मैंने लास्ट लेक्चर में गुड्स रिसीप्ट बताया था, बट स्टिल विल डू वन cycle for that. Yeah. Okay, then because I was absent yesterday. Yes. No, yesterday I didn't lecture. Just I had one doubt session for 15 to 20 minutes only with Raghav. Raghav was available. Okay. Okay. साइकिल क्या है? P2P साइकिल क्या है? एक पूरी जो साइकिल की जाती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, लाइक ओनली आई डोंट वांट दैट, like documents which we created at the time of P2P cycle. So want me to tell it step by step from purchase requisition? देखो, PR होगा, करेक्ट? Yeah. RFQ That if is created in RFQ. suppliers are, yeah, and then PO. Hmm. After PO, goods receipt. Hmm. After goods receipt, then Invoice receipt and then payment. yes, yes. Okay, invoice receipt is nothing but the billing document. Okay, so as of now, what we will consider that PR has been created, requirement has been received, and now we are creating purchase order. Okay, Yes. so we create one purchase order. Manually, we go with, no need to go with reference and all. Just I have to show you how we do the goods receipt. Okay. Simply one PO I have created, and after PO, just consider this PO has been sent to this vendor, respective vendor.
ओके, जो वेंडर यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। Once that vendor received this PO, on that basis of that PO, how much quantity we require, he will be sending, right? तो ऐसे कंसिडर कर लो अभी Yes. हमें वो मटेरियल रिसीव हो गया और हमें गुड्स रिसीव करना है अभी। Yes. मतलब क्या कर सकते हो, ऑफिशियली वो मटेरियल हमें इन्वर्ट करना है, नॉट ओनली फिजिकली। ओके, देन गुड्स रिसीव Okay. के लिए जो टी कोड है दैट इज मीगो। तो ये स्क्रीन ओपन होगा। ओके, तो यहाँ पे दो चेक बॉक्स होते हैं, लाइक चेक नॉट नॉट चेक बॉक्स, लाइक काइंड ऑफ ट्रांजैक्शनल बार, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ड्रॉप डाउन। ओके, देखो गुड्स इश्यू के टाइम पे ये दीज आर द ऑल आर द ट्रांजैक्शंस व्हिच वी आर गोइंग टू डू। एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू डू गुड्स रिसीप्ट, राइट? गुड्स रिसीप्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हिच डॉक्यूमेंट, परचेस ऑर्डर के बेसिस पे ही करने वाले हैं। Purchase order. ओके, Yeah. तो यहाँ पे दूसरा जो बार है उस बार में मैं पीओ नंबर डालूंगी। क्लियर? Okay. वन मोर थिंग, आप यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पे गुड्स रिसीप्ट करके यहाँ पे 101 करके दिया है। Yeah. दीज आर द मूवमेंट टाइप्स, मूवमेंट टाइप, दैट मूवमेंट टाइप एंड ऑल वी आर गोइंग टू सी इन इन्वेंटरी। तो अलग अलग बेसिस पे ना, जो यहाँ पे आप अगर मैं गुड्स इश्यू सिलेक्ट करती हूँ ना तो यहाँ पे 201 करके आता है, समझो? तो Okay. these are the movement type. Movement type is nothing but how we are, it defines actually the movements of material on the basis of the transactions or locations we can say. Okay, Okay. these are standard, ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है। 101 जो होता है मोस्टली यूज किया जाता है नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में कि लाइक व्हेनेवर वी आर डूइंग गुड्स रिसीव, व्हेनेवर वी आर इनवर्टिंग दैट मटेरियल into our company premises, so always 101 will come. Okay, so this will be same for like all other companies. Yes, 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 same Working. So it's standard. standard. Okay. Mm. If in case just you got to know that this goods receipt have been maintained incorrect, okay, and you want to cancel this goods receipt, so for example मैंने पोस्ट किया गुड्स रिसीप्ट, मुझे वो कैंसिल Okay. करना, so what will be the movement type at that time? Any idea, राघव, हर्षा? Moment like I didn't understand. मतलब गुड्स रिसीप्ट किया है, मैंने पोस्ट किया है गुड्स रिसीप्ट, और गलती से आपको मतलब इन बिटवीन आपको ऐसे समझ में आता है कि ये गुड्स रिसीप्ट जो पोस्ट किया है वो गलती से अलग लोकेशन के लिए या फिर क्वांटिटी ये हो गया है, तो वो गलत पोस्ट हो गया इन शॉर्ट, और वो मुझे कैंसिल करना है या फिर रिवर्स करना है, नॉट ओनली कैंसिल, आई वांट टू रिवर्स इट। कैंसिल के लिए अलग है, रिवर्स के लिए अलग है, तो आई वांट टू रिवर्स दैट गुड्स रिसीप्ट। 102, ठीक है? ये देखो कभी भी याद रखो जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे ना उसके लिए अगर 101 आता है, लाइक 1 सीरीज आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, और उसके लिए आपको रिवर्स करना हो ना तो रिवर्स करने के लिए ऑलवेज 2 सीरीज आएगा। Okay. आगे के डिजिट सेम होंगे फॉर रिवर्सल, सिर्फ जो लास्ट डिजिट होता है वो 2 होता है। Okay. ओके, सेम फॉर गुड्स इश्यू। जब मैं आपको बताऊंगी अगर मैंने गुड्स इश्यू मतलब कंजम्पशन बताया एक लोकेशन पे कि लाइक 201 मोमेंट टाइप से, और वो मुझे इन बिटवीन मुझे बाद में पता चलता है कि मैंने जिस डिपार्टमेंट के लिए गुड्स इश्यू मतलब कंजम्पशन दिखाया था वो गलत है और मुझे वो रिवर्स करना है, देन एट द टाइम दैट मोमेंट टाइप विल बी 202। Yeah. क्लियर? रिवर्सल के लिए ऐसे सीरीज है, सेकंड नंबर सीरीज। ओके, ठीक है, देन अभी मैंने यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर डाला है, जस्ट आई हैव टू मेक एंटर। ओके, नाउ सिस्टम इट्स शोइंग मी एरर, व्हाट इज इट? यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड पे Oh, परचेसिंग purchase डॉक्यूमेंट document not not yet yet released. released. So we have made that procedure, right? We have set that strategy and all, correct? Oh, okay. So इसीलिए हमें वो रिलीज करना है। So what will be the T code for release PO? If I want to release a single PO, what will be the T code? Maybe 29. Okay, and for what, for multiple? Maybe 28. 28. Okay. So header level we are going to release it, right? So now यहाँ पे second release strategy apply हुआ है, you can see sequential apply हुआ है, correct? It's not parallel, so I will go sequence wise, I will release it and I will save it. Okay, it has been released, now I will save and I will, now I can proceed for Migo now. And you can come back again and need to execute. Migo. अभी आ गया, राइट? अभी देखो यहाँ पे क्या क्या चीज है, दिस इज हेडर एंड दिस इज आइटम लेवल। जैसे हमने वीआर एंड पीओ में लिखा था, सेम वे वी हैव हेडर एंड आइटम लेवल इन गुड्स रिसीप्ट मीगो आल्सो, नॉट ओनली गुड्स रिसीप्ट, मीगो कह सकते हो क्योंकि गुड्स रिसीप्ट ऑल वो भी ट्रांजैक्शंस आने वाले। ओके, देन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे लाइन आइटम आया, जो हमारा मटेरियल हमें इन्वर्ट करना है। ओके, क्वांटिटी भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट स्टिल यू कैन एंटर इट मैनुअली। ओके, यहाँ पे आइटम लेवल पे क्वांटिटी भी आप चाहोगे ना तो यहाँ पे मैनुअली एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअली क्यों दिया है, फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल मैंने एक ही क्वांटिटी लिया था, पीओ जो निकाला था मैंने परचेस ऑर्डर, तो एक ही क्वांटिटी का निकाला था, बट रियल टाइम में 500 पीसेस 1000 पीसेस हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 500 पीसेस का अगर मैंने पीओ निकाला था, इमीडिएटली मुझे अभी के लिए 250 इज इनफ एंड रेस्ट ऑफ 250 आई विल नीड नेक्स्ट टाइम, आई कैन प्रोक्योर नेक्स्ट टाइम। सो मैं 250 यहाँ पे डाल सकती हूँ, इज इट पॉसिबल? 50%। But no, we have to take all of them, right? ओके, व्हाई यू आर थिंकिंग दैट वी नीड टू टेक ऑल मींस रीजन, यू Because थिंक दैट वी they will हैव be इनफ regarding टाइम our फॉर परचेस ऑर्डर? yeah. ओके, Because तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। ये देखो अगर हम परचेस ऑर्डर रेफरेंस भी लेते हैं ना, स्टिल यू कैन टेक इट ऑन योर ओन, लाइक इफ यू वांट 50 पीसेस 20 पीसेस व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट इज भी के लिए। ओके, okay, okay, आप हाफ क्वांटिटी भी ले सकते हो, नॉट एन इशू। ओनली व्हाट द थिंग यू हैव टू डू इज, जब आप इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, देखो हमने टॉलरेंसेस मेंटेन किए थे, याद है? अंडर डिलीवरी ओवर डिलीवरी टॉलरेंसेस, yes, yes. करेक्ट? तो उस टाइम पे ना यहाँ पे एरर नहीं बताना चाहिए सिस्टम ने, ठीक है? तो वो भी मैं आपको ना इन्वेंटरी के टाइम पे आपको वो करके दिखाऊंगी कि वो सिस्टम एक्सेप्ट करता है या नहीं 50 पीसेस एंड ऑल, 50% क्वांटिटी। ओके,
तो वो टॉलरेंसेस अगर हम मेंटेन करते हैं 2%, 3%, तो आपको एरर नहीं बताएगा। अगर आपने वो टॉलरेंस नहीं मेंटेन किया तो डेफिनेटली सिस्टम विल शो एरर। क्या बोलेगा सिस्टम कि पीओ तो है 1000 क्वांटिटी का एंड यू आर रिसीविंग ओनली 500 पीसेस, सो सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट करेगा। So prior you need to maintain the tolerances in info record. It is clear? क्या कुछ डाउट है? Need to explain again this. हर्षा, अभिनव, राघव। Can you repeat once? ये देखो What is अभी unit जैसे of मैंने entry? बोला, सॉरी, Unit of entry and escape. यूनिट ऑफ एंट्री। What is the meaning of that? ये बोल रहे हो आप, राइट? यूनिट ऑफ एंट्री दिस वन। Quantity. हाँ, जो क्वांटिटी हम इन्वर्ट करने वाले हैं, देखो हमने वो ऑर्डर यूनिट भी डाला था, याद है? info record में। अभी वेंडर से जो मटेरियल आएगा वो पीसेस में ही आएगा, ऐसे तो नहीं है, वो केजी में भी मेजर कर सकता है, राइट? बट हमें कौन से इसमें प्रोक्योर करना है, पीसेस में प्रोक्योर करना है या फिर केजी में प्रोक्योर करना है, वो हमें यहाँ पे एंटर करना होता है। यूनिट ऑफ मेजर इन शॉर्ट ऑफ दैट मटेरियल। ओके, हाँ। देन जैसे मैंने बोला था, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 पीसेस का पीओ निकाला है, परचेस ऑर्डर, और मुझे अभी गुड्स शिफ्ट करना है, वो मटेरियल आ चुका है। और उसके सिनेरियो ऐसे भी हो सकते हैं कि लाइक द वेंडर हु इज सेंडिंग दैट मटेरियल, एज ऑफ नाउ ही हैव ओनली 500 पीसेस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव मटेरियल विथ हिम। ओके, तो हमें क्या बोला है कि वी कांट वेट अगेन फॉर रिमेनिंग 500 पीसेस एंड ऑल, सो दैट 500 पीसेस ही विल बी सेंडिंग अभी के लिए फिलहाल। तो वो मैन्युअली हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर पीओ 1000 पीसेस का भी होगा तो यहाँ पे आपको 1000 पीसेस दिखेगा, यहाँ पे इस लेवल पे। Okay. और यहाँ पे जो है मैन्युअली आप डाल सकते हो 500 पीसेस। तो ये तभी पॉसिबल है जब अपने इन्फो रिकॉर्ड में टॉलरेंसेस मेंटेन किए होंगे। तो टॉलरेंसेस हम पीसेस के बेसिस पे मेजर नहीं करते, देखो परसेंटेज बेसिस पे हमने डाला था, याद है? 2%, 3% टॉलरेंसेस मेंटेन किए थे। Yes, yes, Correct? yes, तो yes, yes. अगर यहाँ पे 1000 है और मैं 500 पीसेस मेजर करूँ तो कितना टॉलरेंस होना चाहिए था इन दैट केस? कितना परसेंट का टॉलरेंस आना चाहिए? 50. करेक्ट, दैट यू नीड टू मेंटेन एक्जैक्टली इनटू योर सिस्टम। वो टॉलरेंस आपको मेंटेन करना होगा, तभी आप यहाँ पे 500 पीसेस डाल सकते हो। तब आपका जो आपने बोला था Okay. हर्षा कि इट्स नॉट पॉसिबल, तब वो अप्लाई हो सकता है इनकेस अगर टॉलरेंस मेंटेन नहीं है तो। ओके, Okay, और okay. अगर So it टॉलरेंस depends on मेंटेन करते हैं, यस info record. करेक्ट। Okay. तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर परचेस ऑर्डर आप 1000 पीसेस का निकालते हो तो 1000 पीसेस ही यहाँ पे एंटर करने की जरूरत है। तो सिनेरियो हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला है, कभी आपको ही रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट इन द Yeah. सेंस कि अभी के लिए फिलहाल 500 पीसेस, वो शेल्फ लाइफ भी देखनी पड़ती है फिर से वो मटेरियल की। आप प्रोक्योर कर लोगे 1000 पीसेस, पर अभी फिलहाल 500 रिक्वायर्ड है और रिमेनिंग 500 आपको चाहिए 1 साल बाद, करेक्ट? और आप बोल रहे हो ठीक है मैं प्रोक्योर करके मेरे स्टोरेज लोकेशन या फिर मेरे वेयर हाउस में रखता हूँ, बट यू ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट मटेरियल, इज इट? सो दीज आर द Got it. थिंग्स, Okay. these things are possible. Okay? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वांटिटी आपको डालना है, मींस मैन्युअली यू कैन एंटर, इसलिए यहाँ पे एडिटेबल मोड में दिया गया है। देन वेयर, कौन से लोकेशन में हमें मूव करना है, ओके, कौन से स्टोरेज लोकेशन में, ओके, इस प्लांट से कौन से स्टोरेज लोकेशन में मूव करना है, इस प्लांट के लिए ऐसे बोल रहा है वो, दिस इज द स्टैंडर्ड प्लांट व्हिच आई हैव बीन यूजिंग। ओके, तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और एक बात, जैसे मैंने बोला दिस 101 इज नथिंग बट मूवमेंट टाइप ऑफ दैट मटेरियल, दिस इज द मूवमेंट, ओके। और यहाँ पे प्लस साइन करके दिया है, क्यों प्लस है? स्टॉक वैल्यूएशन में एक टर्म यूज किया था, देखो व्हाट इज दैट स्टॉक वैल्यूएशन? इट मींस स्टॉक आइदर इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, Mm. राइट? सो Yeah. इन दिस केस This इट is इज इंक्रीजिंग increasing. और डिक्रीजिंग? Increasing. Increasing, that is the reason it's plus sign is there. Oh, okay. Okay, and what about like if I want to reverse this goods receipt, in that case which sign will come? Minus. Minus. Clear? Then यहाँ पे स्टॉक टाइप करके भी दिया है, इस पे भी हम एक डेप्थ में एक मतलब इन्वेंटरी करके टॉपिक जो मैंने बोला आपको, स्टॉक एंड ऑल, तो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड, बाय डिफॉल्ट अनरिस्ट्रिक्टेड ही आएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज क्या होता है? डायरेक्टली वी कैन यूज फॉर प्रोडक्शन, इट मींस, ओके, अगर आपको मटेरियल क्वालिटी के लिए सेंड करना है, रॉ मटेरियल की भी क्वालिटी चेक की जाती है, राइट? वी नीड टू चेक द क्वालिटी वेदर इट इज डिफेक्टिव एंड ऑल। सो वो रॉ मटेरियल के लिए भी आपको क्वालिटी अगर चेक करना हो डायरेक्टली, आपको प्रोडक्शन के लिए नहीं भेजना है, तो आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा इन दैट केस, बट बाय डिफॉल्ट अनरिस्ट्रिक्टेड यूज होता है। ओके, हाँ। और एक बात, अगर गुड्स रिसीव करते वक्त आपको ऐसे इन बिटवीन देखा आपने कि लाइक 500 पीसेस आपने रिसीव किया था, उसमें से 100 पीसेस डिफेक्टिव निकले, सो दैट यू विल कंसीडर इन अनरिस्ट्रिक्टेड यूज फॉर प्रोडक्शन? नो, राइट? तो आपको वो डिफेक्टिव है तो आपको वो अलग से लोकेशन देना पड़ेगा या फिर अलग से सिस्टम में बताना पड़ेगा। तो वो सिस्टम में कैसे आप बता सकते हो? वाया दिस ब्लॉकर। तो वो Okay. 100 पीसेस आपको ब्लॉक करने होंगे, यहाँ पे 100 यहाँ पे ब्लॉक करके यहाँ पे क्वांटिटी भी आपको मेंशन करनी होगी फिर उस टाइप की, क्योंकि आप वो ब्लॉक के लिए सेंड कर रहे हो। ठीक है? तो अभी फिलहाल हम अनरिस्ट्रिक्टेड ही लेंगे, तो ये भी ट्रांजेक्शंस ना अनरिस्ट्रिक्टेड के क्वालिटी के ब्लॉक के, ये मैं इन्वेंटरी के टाइम पे आपको बता दूंगी। ओके, देन स्टोरेज लोकेशन वी हैव टू टेक, सो जो फिलहाल अवेलेबल है वो स्टोरेज लोकेशन लेते हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नहीं मैंने कॉन्फ़िगर किया वो है, एंड देन नो नीड टू एंटर दिस परचेस ऑर्डर डेटा एंड ऑल, ऑलरेडी वो परचेस ऑर्डर नंबर करके आ जाएगा। ओके, Uh, और एक बात, how did you take storage location? Like यहाँ regarding पे the item material or यस, रिगार्डिंग ओनली दिस info आइटम वेयर record? आई नीड टू मूव दिस मटेरियल। Okay, so देखो this यहाँ one पे जो will स्टोरेज also be लोकेशन, सॉरी, this one will also be maintained in info record. Is it taken from that or नो नो नो, should we इन्फो take? रिकॉर्ड में स्टोरेज लोकेशन नहीं मेंटेन होता है। Oh, okay, okay.
Okay, why we are maintaining storage location is we need to invert that material into company premises, right? Company premises में तो आ चुका है, but अभी अलग-अलग dedicated locations भी दिए गए. It's nothing but storage location for respective on basis of that material. A material type we can say. Okay. Okay. तो अभी raw materials मतलब ये raw है ना वायर करके जो मैं procure कर रही हूँ. This is raw for Yes. me के लिए. तो मैंने storage location वन जो है ये raw materials के लिए dedicated location. तो मैं उसमें मूव कर Okay. सकती Okay. हूँ. ओके, हमने स्टोरेज लोकेशंस भी कॉन्फ़िगर किए थे, राइट? लाइक वी कैन कॉन्फ़िगर फॉर सेमी फिनिश, फिनिश पैकेजिंग अगर कुछ प्रोक्योर Yes. करते हो तो अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो तो यहाँ पे वो भी लिस्ट डाउन हो जाएंगे. यहाँ से आप पिकअप कर सकते हो वो लोकेशंस. अभी के लिए फिलहाल मेरे पास एक ही लोकेशन है तो मैं एक लोकेशन ले लेती हूँ. ठीक है, नॉर्मल करके. तो यहाँ पे क्या है, इस लोकेशन में मुझे अभी मूव करना है इन द सेंस दिस वायर, दिस रॉ मटेरियल. ओके, मतलब क्या होगा, अगर मैं सिस्टम में बताती हूँ ना कि स्टोरेज लोकेशन वन करके ये वायर मूव किया है मतलब रखा है वहाँ पे, तो क्या होता है प्रोडक्शन के टाइम पे जो पीपी का पर्सन होता है, राइट, उनको ये वायर लेके फिर वो आगे प्रोसेस करेंगे उसमें फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट होगा एंड ऑल, राइट? तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए, वो सिस्टम में देखता है, वो लोकेशन पे जाके चेक नहीं करेंगे पहले. पहले वो क्या करते हैं, सिस्टम में स्टोरेज लोकेशन में चेक करते हैं कि ये जो मटेरियल है एक्स-वाई-ज़ेड वो कौन से लोकेशन पे है. सो ईजिली दे कैन गो एंड जस्ट पिक अप फ्रॉम देयर. सो दैट इज द Okay. रीजन वी नीड टू मेंटेन हियर द लोकेशन. ओके, एनी डाउट अगेन दिस सेम फॉर प्लांट Got it. आल्सो. प्लांट तो ऑटोमेटिक आ गया है क्योंकि हाँ प्लांट क्यों यहाँ पे डिस्प्ले मोड में मैंने एंटर क्यों नहीं किया मैंने, ऐसे क्यों? परचेज ऑर्डर में हमने डाला था राइट प्लांट. Yeah, we'll give plant a purchase order. हाँ, Yes. कि वो स्पेसिफाई किया था कि फॉर व्हिच प्लांट वी नीड टू एंटर. इवन वी हैव एंटर्ड स्टोरेज लोकेशन आल्सो बट सिस्टम इज आस्किंग व्हाई. अगेन सिस्टम इज आस्किंग ठीक है आपने तो मेंटेन वहां पे किया था बट अगेन अगर दूसरा स्टोरेज लोकेशन हो तो उसमें भी मेंटेन करते हैं कभी कभार, इसलिए अगेन स्पेसिफाई करना पड़ता है स्टोरेज लोकेशन. Okay. ओके, तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू चेक ऑन योर मोमेंट टाइप. मोमेंट टाइप कभी कभी क्या होता है, अभी मैंने सेट किया है. अभी सेट कैसे किया है कि गुड्स रिसिप्ट विद रिस्पेक्ट टू अगर पीओ होता है इस कॉम्बिनेशन के लिए मैंने ये मूवमेंट टाइप सेट किया है. पर आपके जो सिस्टम होंगे वो एक ही कंसल्टेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा. सभी कंसल्टेंट के एक ही सर्वर होता है क्योंकि एक ही सर्वर पे आपको वो कॉन्फ़िगर करना होता है. तो उन्होंने इस कॉम्बिनेशन के लिए अलग कुछ भी सेट कर सकते हैं. गलती हो सकती है इन द सेंस, करेक्ट? तो गलती से ये मूवमेंट टाइप अलग ना हो इसलिए आपको वो चेक करना है. वैसे सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है बट वो ऐप पे भी डिपेंड करता है कि उसने वो कैसे कॉन्फ़िगर करके बैकएंड में सेट किया है लिंकेजेस एंड ऑल. ठीक है, बट दिस स्टैंडर्ड. देन नीचे आप ऑब्जर्व करके यहाँ पे चेक बॉक्स है देखो आइटम ओके करके. अभी के लिए एक ही आइटम है इसलिए मैं एक एक्टिव करके, अगर दो आइटम्स होते हैं ना मतलब लाइन आइटम्स अगर दो होते हैं ओके दो तीन जितने भी हो उसके लिए प्रीवियस प्रीवियस नेक्स्ट आइटम करके आपको सभी आइटम्स के लिए भी आइटम ओके करना ही पड़ता. अदरवाइज यहाँ पे एरर मैसेज शो करेगा. देखो अगर मैं आइटम ओके नहीं करती हूँ यहाँ पे होल्ड. हाँ और एक बात, अगर किसी रीजन की वजह से मुझे ये गुड्स रिसिप्ट होल्ड करना पड़ेगा इन दैट केस यू नीड टू क्लिक ऑन दिस होल्ड डेटा. ठीक है, होल्ड करना पड़ता है कभी कभार. इनवॉइस इसके आगे की जो प्रोसेस है दैट इज इनवॉइस रिसिप्ट बिलिंग डॉक्यूमेंट. तो उसके लिए आपको वो डॉक्यूमेंट कभी कभार पार्क करना पड़ता है. पार्क या फिर होल्ड भी बोल सकते हो. तो वो डिपेंड करता है रीजन या फिर जैसे मैंने बोला आपको जो मटेरियल आपने रिसीव किया है उसमें प्रॉपर्ली कुछ जीएसटी नंबर प्रॉपर्ली एंटर नहीं हो सकता है वेंडर का, या फिर डिफेक्टिव पीसेस आए, यू नीड टू चेक ऑन दैट, यू नीड टाइम ऑन दैट. तो उस केस में आपको होल्ड करना हो तो आप होल्ड कर सकते हो. ठीक है, अभी मुझे चेक करना है मेरा डॉक्यूमेंट करेक्ट है या नहीं ऑल द थिंग्स. सी अभी मैंने चेक करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे नीचे अगेन सिस्टम मुझे एक मैसेज बता रहा है दैट यू हैव नॉट फ्लैग एनी आइटम्स एज ओके. ओके करके भी हमें शो करना है कि यस ऑल दिस थिंग्स आर फॉर दिस लाइन आइटम इज ओके इन द सेंस दैट इज व्हाई वी नीड टू एक्टिव दिस चेक बॉक्स. ओके, नाउ आई विल चेक इट अगेन. एक एरर देखो अकाउंट डिटर्मिनेशन करके. देखो मैंने एक टर्म यूज किया था स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताते वक्त, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन. करेक्ट, याद है? Yes. ओके, AD. Yes. अभी इस केस में क्या हो रहा है ना कि वो अकाउंट जो ऑटोमेटिक आने वाला है, जो अकाउंटिंग एंट्रीज जो जनरेट होने वाले हैं तो वो हो नहीं रहे बिकॉज ये बैकएंड में वो कॉन्फ़िगर नहीं किया गया फॉर दिस रिस्पेक्टिव. तो ये आईएनटी डब्ल्यूआरएक्स ये जो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर. ठीक है, अभी के लिए मैं एरर सॉल्व करती हूँ. टुमारो आई विल शो यू दैट हाउ वी नीड टू मेंटेन दिस अकाउंट डिटर्मिनेशन एंड ऑल. ओके, Okay. ये देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आपको हिंट मिल जाएगा. लाइक मेरा जो प्लान है ना उसके लिए अकाउंट मेंटेन नहीं है, जीएल अकाउंट एंड ऑल. ठीक है, तो वो मेंटेन कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल. तो वो आईएनटी डब्ल्यूआरएक्स क्या है ना, ये काइंड ऑफ कीज है, वो मैं आपको कल बताऊंगी बट अभी फिलहाल इतना आप समझ सकते हो. देखो ओके, तो वो मैं मेंटेन कर रही हूँ. अभी वो एरर नहीं बताएगा सिस्टम.